નમસ્કાર, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. Hello students, this is part 8 of chapter 5, acids, bases and salts of standard 7 science. In the last part, that is 7th part, we discussed about neutralization of acid and base, isn't it? We discussed about neutralization of acids and base. Okay, in that, can you tell me which indicator we used? In that, we used phenolphthalein as an indicator, and the color of phenolphthalein used to be pink. But if we put some phenolphthalein in acid, say hydrochloric acid, then it will become colorless. But once we put base and once it becomes basic, that solution, then in basic solution the color of phenolphthalein is pink. And what is neutralization? Can you tell me what is neutralization? The reaction between acid and base is called neutralization. In this process salt and water are produced and heat also evolve. Okay, so for that we can write neutralization, we can write acid plus base produces salt and water, and heat is evolved, or we can say produces, it produces heat. Okay, and in the last we discussed about hydrochloric acid and sodium hydroxide, and because of that what happened, NaCl, salt, is produced and water is produced as well as heat. This was there in the neutralization. Now today we are going to learn 5.4, point 5.4, that is neutralization in everyday life. In fact, neutralization is happening in our everyday life, but we don't know. So let's discuss about. See, first of all, indigestion. We know what is indigestion, isn't it? So let's see. Our stomach contains hydrochloric acid. Our stomach contains hydrochloric acid. It helps us to digest food. It helps us to digest food, as you have learned in chapter 2. From chapter 2, we know that in our stomach that hydrochloric acid is secreted by the wall of the stomach. That we know. But too much of acid in the stomach causes indigestion. But if the secretion is too much, hence what happens? Too much of acid in the stomach causes indigestion. Sometimes indigestion is painful. To relieve indigestion, we take an antacid such as milk of magnesia, which contains magnesium hydroxide. It neutralizes the effect of excessive acid. क्या होता है, समटाइम्स ज्यादा एक्सेस सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से वो स्टमक में इंडाइजेशन शुरू हो जाता है. तो समटाइम्स इट में कॉज गैस्ट्रिक इरिटेशन, मतलब कि वो पेनफुल हो जाता है. तो अब जो ज्यादा एसिड हो गया है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, वी यूज्ड टू हैव मिल्क ऑफ मैग्नेशिया. मिल्क ऑफ मैग्नेशिया लेते हैं तो क्या होता है, इट एक्चुअली मिल्क ऑफ मैग्नेशिया इज एन एंटासिड. वो क्या है, एंटासिड है, जो जिसमें होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है MgOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एक बेस है. तो जो स्टमक में एसिड था और हमने क्या डाला, बेस,
तो दोनों का न्यूट्रलाइजेशन इफेक्ट हो जाएगा और वो जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, एसिड है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो जो पेनफुल पोजीशन है वो कम हो जाएगी, ठीक है। सो इन एवरीडे लाइफ इफ देयर इज इंडाइजेशन बिकॉज टू मच सिक्रेशन ऑफ एसिड, देन व्हाट one should have intake milk of magnesia. Okay, now second one, that is ant bite. ये हमने देखा ant bite. When an ant bites, it injects the acidic liquid. आपको भी कई बार चींटी ने काटा होगा, isn't it? So when ant bites, it injects the acidic liquid and the name of the acid is formic acid. So it injects formic acid in our body into the skin. The effect of the acid can be neutralized by rubbing moist baking soda, that is sodium hydrogen carbonate or calamine solution which contains zinc carbonate. अब देखो जब एंट बाइट करती है तो क्या करती है, अपने स्किन के अंदर फॉर्मिक एसिड डालती है, छोड़ती है, तो वो एसिड हुआ। अब वो जो एसिड है उसकी वजह से पेन शुरू हो जाता है, ठीक है, स्किन में तकलीफ हो जाती है, कभी कभी स्वेलिंग आ जाती है, वो जो पार्ट है वो रेडिश हो जाता है और वहां पे जलन होने लगती है, होती है ना। अब वो जो एसिड है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करना चाहिए, we should rub moist baking soda. Now baking soda is what? Sodium hydrogen carbonate. Baking soda is what? Sodium NaHCO3. Sodium hydrogen carbonate. This is baking soda. वो जो बेकिंग सोडा, मोइस्ट बेकिंग सोडा है, उसको जो पार्ट में हमें एंट ने बाइट किया है वहां पे मोइस्ट बेकिंग सोडा है उसको रब करना चाहिए, जिसकी वजह से क्या होगा, वो जो स्किन के अंदर फॉर्मिक एसिड है और ये बेकिंग सोडा दैट इज बेसिक, तो दोनों का न्यूट्रलाइजेशन इफेक्ट शुरू हो जाएगा, वो जो एसिड है उसकी सीवियरिटी कम हो जाएगी। या तो हम दूसरा यूज कर सकते हैं, दैट इज कैलामाइन सॉल्यूशन एंड इट इज जिंक कार्बोनेट। जिंक कार्बोनेट ZnCO3, जिंक कार्बोनेट, वो भी एक बेस जैसा ही है, जिसकी वजह से न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा, फॉर्मिक एसिड का न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा। तो एंट बाइट में क्या करना चाहिए, मोइस्ट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है वो स्किन के ऊपर रब करना चाहिए। नाउ सोइल ट्रीटमेंट, द नेक्स्ट वन इज व्हाट, सोइल ट्रीटमेंट। Excessive use of chemical fertilizers make the soil acidic. देखो जब फार्म है तो उसमें केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज होता है, लेकिन अगर वो ज्यादा हो जाता है, एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स मेक्स द सोइल एसिडिक, तो अपनी जो सोइल है वो एसिडिक हो जाती है। प्लांट्स डू नॉट ग्रो वेल when the soil is either too acidic or too basic. अब जो सोइल है वो ज्यादा एसिडिक भी नहीं होनी चाहिए, ज्यादा बेसिक भी नहीं होनी चाहिए, वरना क्या होगा, जो प्लांट्स है विल नॉट ग्रो वेल, ठीक है, तो ग्रेन का उत्पादन कम होगा। तो the soil must not be too acidic or too basic. When the soil is too acidic, अब ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज करने की वजह से इफ द सॉइल इज टू एसिडिक, इट इज ट्रीटेड विथ बेसिस लाइक क्विकलाइम। तो उसमें क्या किया जाता है, क्विकलाइम को उसमें डालते हैं, सॉइल में डालते हैं, एंड क्विकलाइम इज व्हाट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्विकलाइम इज व्हाट, कैल्शियम ऑक्साइड। क्विकलाइम इज CaO, दिस इज क्विकलाइम, कैल्शियम ऑक्साइड। तो उसकी एसिडिक वो कम करने के लिए वो उसके लिए आइदर कैल्शियम ऑक्साइड और स्लेक्ड लाइम, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्लेक्ड लाइम दैट इज CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड।
तो क्या करते हैं, when soil is too acidic, it is treated with bases like quicklime, that is calcium oxide, or slacked lime, that is calcium hydroxide. If this soil is basic, अब ज्यादा एसिडिक हो गई है तो हमने क्या डाला, कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाला जब ज्यादा एसिडिक है. बट इफ दिस सोइल इज टू बेसिक, तो क्या करना चाहिए, इफ दिस सोइल इज बेसिक, organic matter, that is compost, is added to it. Organic matter is added to it. Organic matter releases acids which neutralizes the basic nature of soil. हमें उसमें कंपोस्ट डालना चाहिए. तो क्या होगा, ऑर्गेनिक मैटर, उसमें कंपोस्ट में क्या होगा, ऑर्गेनिक मैटर विच रिलीजेस एसिड्स, वो एसिड रिलीज करता है, एंड विच न्यूट्रलाइजेस द बेसिक नेचर ऑफ सॉइल, जिसकी वजह से सॉइल का बेसिक नेचर है वो खत्म हो जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा और प्लांट विल ग्रो वेल. फिर होता है फैक्ट्री वेस्ट. द वेस्ट ऑफ मैनी फैक्ट्रीज कंटेन्स एसिड्स. द वेस्ट of many factories contains acids. If they are allowed to flow into the water bodies, the acids will kill fish and other organisms. अब जो फैक्ट्री वेस्ट होता है वो जनरली लिक्विड होता है, तो if we allow it to flow in the water bodies, सपोज उससे हमने कोई रिवर में छोड़ दिया या तो कोई बड़े पोंड में छोड़ दिया, तो क्या होगा, रिवर का या तो पोंड का पानी भी एसिडिक हो जाएगा. ठीक है, एंड द एसिड्स विल किल फिश एंड अदर ऑर्गेनिजम्स. तो अंदर जो भी ऑर्गेनिजम्स है, लिविंग थिंग्स है, वो सब विल बी किल्ड बिकॉज ऑफ एसिड. द फैक्ट्री वेस्ट आर देयरफॉर न्यूट्रलाइज्ड बाय एडिंग बेसिक सब्सटेंसेस. अब जो टाइप का वो एसिडिक कंपोनेंट्स है, जो फैक्ट्री वेस्ट है, उसके अनुसार उसमें उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए रिलेटेड बेस उसमें डालना चाहिए, ताकि वो जो फैक्ट्री वेस्ट है वो न्यूट्रलाइज हो जाए. अगर वो न्यूट्रलाइज हो जाए, देन आफ्टर वी कैन फ्लो इनटू द वाटर बॉडीज, ताकि ये जो लिविंग फ्लोरा है, कोई भी पानी में, किसी भी पानी में लिविंग फ्लोरा होता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो इट विल नॉट किल बिकॉज ऑफ दिस फैक्ट्री वेस्ट. व्हाई? बिकॉज वी न्यूट्रलाइज्ड इट. सो इस तरीके से इन आवर डेली रूटीन वी यूज न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ. वी अंडरस्टूड इंडाइजेशन, एंटीबायोटिक, सॉइल ट्रीटमेंट एंड फैक्ट्री वेस्ट. तो इसके साथ वी आर फिनिशिंग दिस चैप्टर. Okay, so the name of the chapter was chapter 5, acids, base and salts. And with this we are finishing this chapter. Read this chapter very carefully in textbook also, and watch these videos repetitively so that you can understand the ideas very well. Thank you. Thank you for joining us. Take care of yourselves and we'll meet you in the next session. Thank you.